مبسملا ومحمدلا ومسلما ومصليا أما بعد قال الله تعالى في شان حبيبه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال الله تعالى في مقام آخر في شان حبيبه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال الله تعالى في موضع آخر في شان حبيبه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها اللهم صل على محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك یا رسول اللہ۔ آج کی بزم کے صدر نشین سید السادات، لائق تعظیم، لائق اکرام قبلہ حضرت پیر سید امیر حسین شاہ صاحب ادام اللہ فیضہ، میرے بائیں جانب سید السادات حضرت علامہ پیر سید ہارون انس شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، عاشقان رسول اور کشمیری کمیونٹی کے جملہ ذمہ داران، شرکائے تقریب، میں سب سے پہلے اپنے بھائی کبیر صاحب کا، شبیر صاحب کا، ضمیر صاحب کا اور ان کے رفقائے کار محترم خالد خان صاحب، خالد مغل صاحب، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کے صدقہ سے ہم سب کے حال پر کرم فرمائے۔ سوموار کا دن تھا، حضرت ابو دردہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلتے ہیں عامر انصاری کے گھر، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر انصاری کے گھر پہنچے تو اتفاق سے وہ حضور کے میلاد کا ذکر کر رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو میلاد کی سیلیبریشن ہے یہ کہاں سے آئی، تو حضور حضرت عامر انصاری کے گھر پہنچے تو وہ حضور کے پیدائش کا، صبح میلاد کا ذکر کر رہے تھے کہ حضور سموار اپنے بچوں کو، فیملی ممبران کو بٹھا کر کہہ رہے تھے کہ حضور سموار کے دن پیدا ہوئے۔ جو ہی رسول پاک ان کے گھر جلوہ گر ہوئے تو حضور نے فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، بے شک اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو جو بندہ میلاد کی محفل سیلیبریٹ کرتا ہے اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور فرمایا والملائکہ کلہم یستغفرون لک، ایک دعا آپ کرتے ہیں، ایک دعا یہ سادات کرام کرتے ہیں، لیکن میلاد شریف جو بندہ دل کی گہرائی سے مناتا ہے، حضور نے فرمایا کہ فرشتے اس کی بخشش کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ پھر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں سیلیبریشن نہیں ہے، آپ جو نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اس کا کوئی پس منظر ہے؟ یہ جو فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں، حضرت آدم جب زمین پر اترے وہ توبہ کرتے رہے، سیوطی نے اس کو نقل کیا ہے، تو جب ان کی توبہ پر قبولیت کا صحرا چڑھا تو وہ فجر کا لمحہ تھا، انہوں نے اللہ کے حسن کے آگے ماتھا جھکایا، 2 رکعتیں پڑھیں شکرانے کے طور پر، وہ امت مسلمہ کی نماز فجر بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی وجہ سے ان کے خواہشوں کے درخت پر ایک امید کا جو
बूटा मचल रहा था, अल्लाह ने पिराना साली में जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम, ज़ोहर का लम्हा था, दुआ की, बेटे की बिशारत दी, तो आपने 4 रकतें पढ़ी ज़ोहर की। तो ये ज़ोहर की नमाज दरअसल मिलाद इसहाक अलैहिस्सलाम की सेलिब्रेशन है। असर की नमाज जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक मौत की वादी में रहे। कुरान कहता है सूरह बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 258, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 258, अल्लाह ने उन पर 100 साल मौत तारी कर दी। सुम्मा बासहू, फिर जिंदा किया। पूछा कम लबिस्त, कितना अर्सा गुजारा? कहते हैं लबिस्त यौमन औ बाद यौमिन, एक दिन गुजारा या आधा दिन गुजारा। फंजुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, देखो तुम्हारे खाने और पीने की चीज़ में ताफ़ुन नहीं है। आइंस्टाइन की थ्योरी है टाइम ऑफ रिलेटिविटी, वो ये कुरान की इस आयत से निकाली है। यहाँ पर राजी ने एक जुमला लिखा है, वो कहते हैं कि खाने की तभी ज़िंदगी, अभी वो खाना आपके लिए आ रहा है तो 24 घंटे के बाद इसका जायका बदल जाता है। आप ये पानी मिनरल वाटर, इसका ढक्कन खोल कर एक तरफ रख दें, 24 घंटे के बाद पानी की हालत बदल जाएगी। तो खाना और पीना, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी अगर आप फ्रीज़ भी करते हैं तो 24 घंटे तक है, लेकिन 100 साल गुजर गए। 100 साल गुजर जाने के बाद खाना भी तरोताज़ा है, पीने का पानी भी तरोताज़ा है। राजी ने कहा कि क्यों तरोताज़ा है? कहते हैं खाने की निस्बत अल्लाह के पैगंबर उज़ैर से हो गई, 100 साल तक वो तरोताज़ा रहा। अगर इंसान की निस्बत मोहम्मद अरबी से हो जाए तो वो कब्र में जाकर क्यों तरोताज़ा नहीं रहेगा। तो 100 साल के बाद जब दोबारा ज़िंदा किया तो उन्होंने शुक्राने के तौर पर 4 रकतें पढ़ी, तो असर का लम्हा था, वो उम्मत मुस्लिमा की नमाज असर बन गई। इस तरह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम तवील अरसा बीमार रहे। सेहत याबी के बाद उन्होंने चाहा कि हुस्न उलूहियत के आगे अपनी जबीन नियाज को झुकाएं, तो चूँकि कमज़ोरी थी जिस्म में, 4 रकतों के लिए खड़े हुए, 3 रकतों के बाद चौथी रकत के लिए खड़े ना हो सके, 3 रकतों के बाद सलाम फेरा, वो नमाज मगरिब उम्मत मुस्लिमा की बन गई। इशा की जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेड़ से निकले, उन्होंने तुम्हें बात बताने की ये है कि आप जो नमाज पढ़ते हैं ये नमाज भी किसी न किसी की याद है। ये जो लोग कहते हैं कि जी इस्लाम में सेलिब्रेशन नहीं है, ये सरासर इस्लाम के तसव्वुर से नाआशना हैं। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो अपने घरों में और अपने तजारती मराकज़ में मिलाद की महाफ़िल का अहतमाम करते हैं। आज की मुबारक नशिस्त के लिए मैंने कुरान मजीद के 3 मकामात तिलावत किए हैं। एक सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 15, दूसरा मकाम सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 79, और तीसरा मकाम सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक बुज़ुर्ग हैं, उनका नाम है हज़रत महदी अल-फासी, उनकी किताब है मुतालिउल मुसर्रात शरह दलाइलुल खैरात। उसमें वो नकल करते हैं कि जिस बंदे को हुजूर का ज़िक्र सुनकर जिसके दिल में सुकून नहीं आता, उसे अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए। तो हुजूर का ज़िक्र है, ज़रा मचल मचल कर सुनिएगा। कुरान हकीम कहता है क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक तुम्हारे पास नूर आया। आप जानते हैं कि आता वो है जो पहले कहीं मौजूद हो। मोहतरम हाजी नवाज साहब यहाँ आए हैं तो ये पहले कहीं थे तो आए हैं, बुज़ुर्ग यहाँ आए हैं तो ये पहले कहीं थे तो आए हैं। अल्लाह फरमाता है तहकीक तुम्हारे पास नूर आया। अरे मौला बता वो नूर पहले कहाँ था? आवाज़ आई जब कुछ न था तो मेरे महबूब मोहम्मद का नूर जगमगा रहा था। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमहुल्लाह ताला फरमाते नूर मोहम्मद रोशन आहा आदम जदू न होया, जब कुछ भी न था
ہر چیز عدم کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ کی تخلیق کا، اللہ کی کریشن کا جو چیز سر و نوان بنی وہ اس کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ کا نور تھا۔ حضور بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ حدیث کا اگلا جملہ آپ سب جانتے ہیں، میں یہ جملہ نہیں بیان کروں گا، حدیث بڑی لمبی ہے، آپ یاد کر کے جائیے گا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے رسول کی ایک دعا ہے، نضر اللہ عبدا من سمع مقالتی حفظها ووعاها واداها، اس بندے کا چہرہ روشن ہو جائے جو میری بات کو یاد کرتا ہے، دماغ میں بٹھاتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ حضور نے دعا کی ہے کہ جو میری بات توجہ سے سنتا ہے اس کا چہرہ چمک جائے، تو آپ نے یہ حدیث یاد کر کے جانی ہے۔ صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، اس کا چین آف اتھارٹی کیا ہے؟ یہ حدیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ جناب عبد الرزاق محدث گزرے ہیں، انہوں نے جناب معمر سے، انہوں نے محمد بن منقدر سے، انہوں نے سیدنا جابر سے، انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ سے نقل کیا۔ حضور نے فرمایا کہ تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، ہینا خلقہ فاقامہ اللہ تعالی فی مقام القرب اثنا عشر الف سنہ، اللہ نے جب میرے نور کو پیدا کیا تو میرے نور کو 12,000 سال تک مقام قرب میں رکھا۔ ابھی حضرت آدم کو پیدا نہیں کیا۔ یہ میں تقریر چونکہ ذرا روایات سے ہٹ کر کرتا ہوں دونوں سادات کرام کی موجودگی میں، مقصد بات کو سمجھانا ہے، صرف آپ سے داد وصول نہیں کرنی۔ چلو کوئی نہ کچھ تو ہم یاد کر کے جائیں، کبیر صاحب نے بڑی محبت سے یہ مجلس سجائی ہے تو ہم یہاں بیٹھ کر چلو ایک حدیث پاک ہی یاد کر لیں، کتنا ایمان کو تازگی ملے گی، کتنا ایمان کو سرور ملے گا۔ حضور نے فرمایا پھر اللہ پاک نے میرے نور کو 12,000 سال تک مقام حیا میں رکھا، 12,000 سال تک مقام محبت میں رکھا، 12,000 سال تک مقام امید میں رکھا، اور پھر 12,000 سال تک مقام خوف میں رکھا۔ ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے، ابھی ستاروں کی کہکشاؤں کو پیدا نہیں کیا، ابھی سورج کی چمک کو پیدا نہیں کیا، ابھی چاند کی خنکی کو پیدا نہیں کیا، ابھی بحر و بر کو پیدا نہیں کیا، ابھی آبشاروں کی نغمگی کو پیدا نہیں کیا، ابھی دریاؤں کے بہاؤ کو پیدا نہیں کیا، لہلہاتے ہوئے کھیت پیدا نہیں کیے، بلبل کا ترنم پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، اور نور مصطفیٰ کو اپنے قرب کے جلووں میں 60,000 سال تک رکھا۔ تو اس کے بعد صحابی پوچھتے ہیں پھر کیا ہوا؟ تو حضور نے فرمایا ثم نظر اللہ الی، پھر اللہ نے میرے نور کو دیکھا، فترشح النور عرقا، میرے نور کو پسینہ آ گیا۔ یا رسول اللہ، آپ کے نور کو جب پسینہ آیا اس پسینے کے قطرے کتنے تھے؟ کتنا قیمتی پسینہ تھا، اور پسینے کے قطرے آپ شمار کر سکتے ہیں؟ آپ دھوپ میں چلیں، برطانیہ میں تو چلو ٹھنڈا موسم ہوتا ہے نا، یہاں باہر چلیں تو آپ کو الٹیمیٹلی پسینہ آئے گا، تو پسینے کے قطرے تو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ صحابی کا عقیدہ دیکھیے اور بتانے والے کا علم دیکھیے۔ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ کے نور کو پسینہ آیا اس پسینے کے قطرے کتنے تھے؟ فرمایا 124 قطرہ۔ اللہ نے جب میرے نور کو دیکھا، میرے نور کو پسینہ آیا، اس پسینے کے قطرے 1,24,000 تھے۔ آقا اس سے بنا کیا؟ اس سے بنا کیا؟ وہ کتنا قیمتی پسینہ ہے۔ فرمایا فی کل قطرۃ خلق اللہ روح نبی و روح رسول، اللہ نے میرے نور کے پسینے کے ایک ایک قطرہ سے ایک نبی اور ایک رسول کی روح کو پیدا کیا۔ تو ہر مبارک ہو، مبارک ہو۔ چلیں آپ جب نعرہ لگاتے ہیں تو ذرا وجد کے ساتھ لگا دیں۔ شاہ صاحب کی اولا فرما رہے تھے کہ میں نے دل کو نعروں سے منع کیا، مطلب یہ ہے کہ صرف نعرے نہیں لگانے،
कुछ सीखना भी है तो एक दारा नारा लगा दे, नारा तकबीर, नारा रिसालत। तो हर चीज से पहले अल्लाह ने हुजूर के नूर को पैदा किया, फिर हुजूर के नूर से सारी कायनात को पैदा किया। अंबियाए किराम की रूहों को भी हुजूर के नूर से पैदा किया। वो नूर कभी हजरत आदम की पेशानी में चमका, कभी जनाब नूह के चेहरे पर चमका, कभी जनाब यूसुफ के चेहरे पर उसने अटकेलियाँ की। मुख्तलिफ सुरबों से मुख्तलिफ रहमों में मुंतकिल होते हुए ट्रैवल करते करते 12 रबीउल अव्वल की सुहानी घड़ियाँ हैं। रात का अंधेरा जा रहा है, सुबह की रोशनी आ रही है। महल्ला बनु हाशिम है, हजरत आमना का आंगन है। अल्लाह के हबीब इस कायनात में जलवागर हुए। और पता है किस शान से आए? हुजूर का सर सजदे में है। ये हमारी हदीस की किताबों में सर सजदे में है, उंगली फिजा में है और ज़बान पर एक दिलवेज तराना है, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे। और हुजूर इस कायनात में लबास बशर का पहन कर आए। सब बोलिए कौन सा लबास पहन कर आए? सब बोलें कौन सा लबास पहन कर आए? नूर की क्रिएशन अल्लाह ने हर चीज़ से पहले की, तो इस कायनात में बशर का लिबास पहन कर आए। और बशर किस चीज़ से बनता है? आप बुजुर्गों से पूछ लें, छोड़े पढ़े लिखे लोगों को। आप बाहर किसी आम जो मुसलमान भाई किसी दुकान पर काम करता है ना, उससे पूछें कि बशर कहते हैं ये इंसान का जो ज़हरी बॉडी है, इसको बशर कहते हैं। ये बशर किस चीज़ से बनता है? तो हर बंदा कहेगा जी बशर मट्टी से बनता है। कुरान ने बयान किया, सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 54, हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरा। अल्लाह ने कुरान में बयान किया सूरह मुमिन सूरह नंबर 40 आयत नंबर 67, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब। अल्लाह ने कुरान में बयान किया सूरह अनआम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 2, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन। अल्लाह ने कुरान में बयान किया सूरह साफात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 11, इन्ना खलक़नाहुम मिन तीनिल लाज़िब। हमने इंसान को इनऑर्गेनिक मैटर ऑफ क्ले से बनाया, मट्टी से बनाया। तो ये इंसान का बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कुरान ने बयान किया कि हर बशर को मैं मट्टी से बनाता हूँ। हुजूर इस कायनात में लिबास बशर का पहन कर आए। तो कश्मीरी कम्युनिटी के अहबाब और आशिकान रसूल और इस मिलाद हाल में बैठने वाले अहबाब, इन उलमा की मौजूदगी में मैं आपसे पूछता हूँ कि हुजूर का जिस्म किस चीज़ से बना? अगर कोई बंदा कहे कि हुजूर का जिस्म मट्टी से बना, तो हमारे और हुजूर के जिस्म में क्या फ़र्क रहा? और अगर कहा जाए कि मट्टी से नहीं बना, तो अल्लाह का हुक्म कहाँ गया? दो में से एक बात को तो मानना पड़ेगा, या ये कहना पड़ेगा कि मट्टी से बने। अगर ये कहा जाए मट्टी से बने, तो हमारे और हुजूर के जिस्म में फ़र्क न रहा। अगर कहा जाए कि मट्टी नहीं लगी, तो अल्लाह के हुक्म की नफ़ी हो गई। आओ मैं किबला पीर साहब की मौजूदगी में ये दोनों सादात, और मजलिसों में जब सादात आ जाएं तो वो मजलिस अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल होती है। इनकी मौजूदगी में आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह ने हुजूर का जिस्म जब बनाना चाहा, जिब्रील को बुलाया, जिब्रील आ जाओ, अकेले नहीं आना, फरिश्तों का जुलूस लेकर आना है। इन्नल्लाह तबारक व तआला लम्मा अरादा अन यख्लुक़ मुहम्मद अमरा जिब्रील अन यातियहु बिल क़ब्ज़तिल बैदा अल्लती हिया नूरुल अर्द सुम्मा गुमिसत बिअनहारिल जन्ना। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील आ जाओ, और अकेले नहीं आना, फरिश्तों का जुलूस लेकर आओ और उस मकाम पर चले जाओ जहाँ पर मेरे महबूब मोहम्मद का रोज़ा बनना है। मट्टी उस जगह की लगती है इंसान के जिस्म को जहाँ पर उसकी कब्र को बनना होता है। तो अल्लाह ने फरमाया उस मकाम पर चले जाओ, वहाँ से मट्टी लाओ जहाँ मेरे महबूब का रोज़ा बनना है। और महबूब के रोज़े की शान क्या है? आप मदीना शरीफ गए ना, तो मस्जिद नबवी शरीफ की पेशानी पर यह हदीस लिखी है, माँ, ये बुखारी की हदीस पाक है, माँ बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना। मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जितना हिस्सा है, देखने में तो ज़मीन है, हकीकत में ज़मीन नहीं, वो जन्नत का बाग है। और जन्नत की हकीकत क्या है? जन्नत की मट्टी नूर है, जन्नत के पत्ते नूर हैं, जन्नत की हूरें नूर हैं, जन्नत की एक एक शय नूर है। रब्बे ज़ुल जलाल ने हर इंसान के जिस्म को
इस मट्टी से बनाया, अपने हबीब के जिस्म के लिए ये मट्टी नहीं, वो नूर की मट्टी जमीन पर उतारी, उससे अपने हबीब का जिस्म बनाया। यही वजह है मौला अली कहते हैं दोपहर के वक़्त चलचलाती दोपहर में हम हुजूर के साथ चलते, हमारा साया बनता, कमली वाले का साया नहीं बना करता था। ये लाइट को अरबी में नूर कहते हैं। इस नूर को उस नूर के मुकाबले में खड़ा कर दें तो कभी पस मंज़र में साया नहीं बनेगा। मौला अली कहते हैं कि हमारा साया बनता, क्यों कि हमारा ताल्लुक इस मट्टी से है, हमारा साया बनता, कमली वाले का साया नहीं बनता था। नूर नूर से गुजर जाया करता था। हमें पसीना आता है तो ताफुन होता है ना, नफरत जन्म लेती है, और हुजूर को पसीना आता, सहाबा किराम कहते हैं इस नीले आसमां के नीचे कायनात की कोई कस्तूरी मुस्तफ़ा के पसीने का मुकाबला नहीं कर सकती थी। हमारा ताल्लुक इस मट्टी से है। हम हाथ खड़ा करते हैं तो ये मैक्सिमम हद है, इससे ऊपर मेरा हाथ नहीं जाएगा। हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज के दौरान हुजूर ने हाथ बुलंद किया, जो ही नमाज ख़त्म हुई तो सहाबा ने पूछा, सही मुस्लिम के लफ्ज़ हैं, ये हदीस सुना रहा हूँ, सही मुस्लिम के लफ्ज़ हैं। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह अजब माजरा है कि आप नमाज के दौरान हाथ इस तरह बुलंद कर रहे थे जैसे किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं, जैसे किसी चीज़ पर हाथ डाल रहे हैं। कुर्बान जाएं, सहाबा का इश्क भी देखिए, वो नमाज रब की पढ़ते थे, दीदार कमली वाले का किया करते थे। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा इन्नी रअयतुल जन्ना फतनावलतु मिन्हा अनक़ूदन लौ अख़ज़तहु लअकलतुम मा बक़ियतिद दुनिया। मेरे सहाबा तुम मुझे यहाँ देख रहे थे, मैंने हाथ बुलंद किया, मेरा हाथ सीधा जन्नत के बाग में चला गया। वहाँ अंगूर का एक खोशा मेरे हाथ में आया, अगर मैं तोड़ कर ले आता सारी दुनिया वो अंगूर खाती, मोहम्मद का वो लंगर कभी ख़त्म ना होता। तो हमारा ताल्लुक, आप खड़े हो जाएं, जितना भी कोई दराज कद हो, 6 फुट 7 फुट का भी हो, तो हाथ एक मकाम पर जाकर रुक जाएगा, क्योंकि हमारा ताल्लुक इस मट्टी से है। और कमली वाला जब हाथ बुलंद करता है तो हुजूर का हाथ सीधा जन्नत के बाग में चला जाता है। इस पर फिर मैं आपको कुरान की दलील देता हूँ। अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम घर से निकले, मेरे उस्ताद थे शेख महमूद अब्दुल रब्बे, जामिया अल-अज़हर के उस्ताद थे, लाहौर में पढ़ाते थे। तो मैंने उनसे पूछा ये जो तूर है ये कितना ऊंचा है? उन्होंने कहा कंपैरेटिवली इतना ऊंचा पहाड़ नहीं है, इधर भी ऊंचा पहाड़ है, इधर भी ऊंचा पहाड़ है, दरमियान में कोई तूर है। तो मैंने कहा हम तो ये सोचते रहे शायद कोई तूर बहुत ऊंचा होगा। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ गए, उन्होंने एक हिकमत बयान की। उन्होंने कहा जब मूसा घर से निकले ना तो जो ऊंचे पहाड़ थे वो फख्र करने लगे कि मूसा के कदम हमारे पेट पर लगेंगे। तूर ने कहा मौला मेरा कद इतना ऊंचा नहीं, आजिज़ी तेरी बारगाह में पेश करता हूँ। तो अगर पहाड़ आजिज़ी करे तो आज भी कोहे तूर का जिक्र अमेरिका में हो रहा है, अगर इंसान आजिज़ी करे तो वो किस तरह मर सकता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए। कुरान ने इस मज़मून को बयान किया, सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 144। अल्लाह के हुजूर अर्ज करते हैं अरेनी अंजुर इलैक, ओ मौला तुझे देखना चाहता हूँ। जवाब मिला लन तरानी, तू नहीं देख सकता। जब शौक बढ़ा ना तो अल्लाह पाक ने फरमाया उन्जुर इलल जबल, ओ पहाड़ को देखो, इनिस्तकर्र मकानहु फसौफ तरानी, पहाड़ अगर अपनी जगह पर ठहरा रहा तो देख लेना। कुरान कहता है फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कम व खर्रा मूसा साइका, एक तजल्ली गिरी, मूसा बेहोश हो गए और तूर का पहाड़ जल गया। एक तजल्ली गिरी, मूसा बेहोश हो गए, तूर का पहाड़ जल गया। ये एक मंजर है, तजल्ली अल्लाह की है। मस्जिद इस प्रोग्राम में आने वालों बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, बड़ा लतीफ नुक्ता है। तजल्ली रब की है, तूर पर गिरी, तूर जल गया, मूसा बेहोश हो गए। और शबे मेराज खड़ी के ताजदार ने भी इंतहा कर दी। सब किसे थी गे अगेरे, चाचा पर्दे नूरी, काबा कौसैने औ अदना ताई पाया शान हुजूरी। जहां कोई भी नहीं जा सका, मुस्तफ़ा अल्लाह की बारगाह में गए। सूरह वन नजम सूरह नंबर 53 आयत नंबर 1 से लेकर 18 तक एक ही मजमून है। कुरान कहता है कि शबे मेराज हुजूर जब अल्लाह की बारगाह में गए
मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा मा कज़बल फ़ुआद मा रआ। मुस्तफ़ा की आंख भी रब को देख रही है, मुस्तफ़ा का दिल भी रब को देख रहा है। और तिरमिज़ी के लफ्ज़ हैं फ़वदा यदाहु बैन कतफ़ैया फ़वजदतु बरदहा बैन सदयैया, कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत अपनी शान के मुताबिक मेरे कंधों के दरमियान रखा, मैंने उसकी ठंडक महसूस की। इस मकाम पर काजी बेज़ावी बोले, मसलन मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, मैं बुजुर्गों को इसलिए साथ साथ शामिल करता हूँ ताकि एक कैफियत तारी रहे। तो ये मुझे देखें तो मुझे सुकून मिले, किसी और को देखें तो तकलीफ पहुंचे। तो या पहला देखना इनका देखना नहीं, या बाद का देखना इनका देखना नहीं, क्योंकि एक चीज का असर एक होता है। अगर ये मुझे देखें तो मुझे सुकून मिले, किसी और को तकलीफ क्यों पहुंचे। काजी बेज़ावी कहते हैं कि अगर अल्लाह की तजल्ली का काम जलाना था तो हुजूर को ठंडक क्यों मिली, और अगर ठंडक पहुंचाना था तो तूर का पहाड़ क्यों जला। वो नतीजा निकालते हैं, कहते हैं वो तजल्ली भी खुदा की थी, वो हाथ भी खुदा का था, बस एक फर्क रखिए, तजल्ली तूर पर गिरी, तूर मट्टी से बना, वो जल गया, मोहम्मद उसके नूर से बना, इसलिए मोहम्मद अरबी को सुकून मिल गया। और दूसरा मंजर भी सुनिए, हजरत मूसा ने जब तजल्ली देखी ना, इब्न कसीर नकल करते हैं इन्नहु कान यरा फी लैलतिन मुज़लिमा, वो रात के अंधेरे में 30 माइल के फासले पर चलने वाली चींटी को, छोटे से कीड़े को भी देख लिया करते थे, रात की तारीकी में देख लिया करते थे। जिसने एक तजल्ली देखी, और जिस कमली वाले ने तजल्ली नहीं, खुदा की ज़ात को देखा। अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो किबला पीर साहब कर रहे थे ना नकाबत, मैंने बरतानिया में या पाकिस्तान में देखा है, तो वो हमारे यहाँ जो कंपेयरिंग करने वाले अहबाब हैं ना, वो लोगों के जज्बात गरमाने के लिए कहते हैं जी आवाज़ इतनी ऊंची करो कि दीवारों से आवाज़ टकराए और गुंबद तक चले जाए। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमारी आवाज़ हमारे कान में बात में जाती है, मकीन गुंबद खिजरा की बारगाह में पहले पहुंच जाया करती है। और इकबाल ने भी कहा, ए फरोगत तो सुबह आसार दहूर, चश्मे तू बनिंदाए माफी सदूर। या रसूल अल्लाह, आपके इल्म का क्या कहना, उम्मती के दिल में जो ख्याल आता है उसके कान को खबर बाद में होती है, मकीने गुंबद खिजरा को उसकी खबर पहले हो जाया करती है। ये हुजूर का मकाम मैंने आपके सामने रखा। आओ सरवरे कायनात की ज़ात से मोहब्बत करो, ये मोहब्बत दुनिया में कामयाबी का ज़रिया है, ये मोहब्बत कब्र में कामयाबी का ज़रिया है। कब्र में अमल बख्शिश का ज़रिया नहीं, वो अमल काबिल कबूल होगा जिसकी बुनियाद में हुजूर की मोहब्बत होगी। मैं इन उलमा की मौजूदगी में जुमला कह रहा हूँ, वो अमल काबिल कबूल होगा जिसकी बुनियाद में हुजूर की मोहब्बत का पानी होगा। तो कब्र में वही कामयाब होगा जिसका ताल्लुक हुजूर से होगा। और हशर का दिन, बड़ी तवज्जो से सुनिए, मौलाना अमजद अली आज़मी रहमहुल्लाह ताला का एक जुमला है कि मजलिस में अगर सुकून तारी हो जाए ना, तो यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं, मैं उर्दू में बयान कर रहा हूँ तो ज़ाहिर है आपकी ज़्यादा इंग्लिश लोग जानते हैं, लेकिन हर एक का चेहरा चमक रहा है, हर एक की आंख चमक रही है। तो वो फरमाते हैं कि मजलिस में बैठकर लोगों के चेहरे खिल जाएं, लोगों के चेहरों पर नूर आ जाए, तो समझ लो कि वह महफिल हुजूर की बारगाह में मकबूल महफिल है। हशर का दिन होगा, दोस्तियों की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, बरादरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए बरादरियों पर कभी नाज ना किया करें। ये जो बरादरियाँ हैं ना, ये पाकिस्तान में, कश्मीर में हमारे सियासी ज़ुआमा लोगों को बरादरियों में उलझा कर अपनी वो एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते रहते हैं। हमारी एक बरादरी है और वो है निस्बत मोहम्मद की बरादरी। इस पर फख्र किया करें, इस पर नाज किया करें। ये किन बरादरियों पर पड़े हुए हैं जी, ये माड़ी बरादरी तो ये तुम्हारी बरादरी, ये क्या है? एक बरादरी है और वो है सरबरे कायनात की जो निस्बत अल्लाह ने हमें अता की है। अब यहाँ का कोई मसलन, यहाँ एक साथी होटल में एक सियाफाम कलमा मुसलमान रहता है, तो क्या हम उससे मोहब्बत से नहीं मिलते? क्यों? कि ये मोहम्मद अरबी का गुलाम है। एक बरादरी पर नाज किया करें, एक बरादरी पर फख्र किया करें। हशर का दिन होगा, सारी बरादरियां खत्म हो जाएंगी। आप जरा कुरान का मुताला करें, सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 101।
फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। सारी बरादरियां ख़त्म हो जाएंगी, हशर में कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। सूरा अल फजर, सूरा नंबर 89, आयत नंबर 22, कुरान कहता है जा रब्बुक, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक आएगा। वो अल्लाह आने से पाक है, हम आते हैं ना, अल्लाह आने से पाक है, इसका मतलब है वो अपनी शान के मुताबिक अपना हुक्म सादर करेगा। वल मलकु सफ़न सफ़ा, फरिश्ते कितार अंदर कितार आएंगे। वजीया यौमइज़िन बिजहन्नम, जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा। हर एक पर लर्जा तारी होगा, हशर के दिन हर एक पर लर्जा तारी होगा, हर एक कांप रहा होगा। दोस्तियां खत्म हो जाएंगी, बरादरियां खत्म हो जाएंगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। पर जरा ईमान ताज़ा करें। बुखारी के लफ्ज़ हैं, हुजूर ने फरमाया अव्वल खुरूजन इज़ा बुअसू, सबसे पहले मैं मुहम्मद अपने मिज़ार से बाहर आऊँगा। सब बोले सबसे पहले कौन बाहर आएगा हशर के दिन? हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप पहले बाहर आएंगे। हुजूर कहते हैं मैं पहले बाहर आऊँगा। और खड़ी के ताजदार कहते हैं सदर नशीन दीवान हशरदा, अफसर विच इमामा, कुल नबी मुख्ताज ना दे नफरा वांग गुलामा, कि हशर के चीफ गेस्ट मुस्तफ़ा होंगे। और हुजूर क्या कहते हैं? मैं पहले आऊँगा। तो मेहमान खुसूसी कभी पहले नहीं आते। आप पीर साहब को यहाँ बिठा दें, लोग ही ना मौजूद हों, मेहमान खुसूसी के तौर पर दावत दें, मुझे दे दें, इनको दे दें, आपको कोई दे दे, तो लोग ही मौजूद ना हो तो मेहमान खुसूसी को आप पहले ही बुला लें, तो ये इज़्ज़त और एजाज़ नहीं होता। एजाज़ क्या होता है? लोग आ जाएं, अवाम बैठ जाएं, मजमा लग जाए, महफिल सज जाए, फिर चीफ गेस्ट आए। पर हशर का तमाशा देखो, हुजूर कहते हैं मैं पहले आऊँगा। तो या रसूलल्लाह आप पहले क्यों आएंगे? आवाज़ आती है कि मेरा मकाम तो यही था कि मैं सबसे आखिर में आता, लेकिन मैं पहले आऊँगा और रब के दाईं तरफ जलवागर होऊंगा। या रसूलल्लाह क्यों पहले आएंगे? आवाज़ आई मेरा उम्मती जब कब्र से निकलेगा थर थर कांप रहा होगा, कहीं रिश्तों का टूटता हुआ मंजर, कहीं आसमां का बिखरता हुआ मंजर, कहीं बरादरियों के टूटते हुई कैफियत को मेरा उम्मती, और कहीं आग के शोलों को देखेगा। मैं पहले आऊँगा ताकि मेरे उम्मती की नज़र मेरे चेहरे पर पड़े, अल्लाह ताला उसकी सारी परेशानी को दूर फरमा दे। और फिर हुजूर कहते हैं अखिर्रु लहू साजिदन, मैं सजदे में जाऊँगा। अल्लाह फरमाएगा मा कुन्त तुरीद अन अस्ना लि उम्मतिक इरफा रअसक या मुहम्मद। ओ मेरा हबीब आप बताएं आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? लोग कहते हैं जी रसूल के चाहने से होता कुछ नहीं, हशर का पहला ऑर्डिनेंस ही हुजूर की चाहत से शुरू होगा। आप क्या चाहते हैं? इसलिए मियाँ साहब फरमाते हैं ना, ऐसा नबी जिनादा वाली सो उम्मत क्यों चुरसी, चुरना कहते हैं ये कांपना, ये ऐसा नबी जिनादा वाली सो उम्मत क्यों चुरसी, ऐब गना खताइयां बाबत क्यों तो जख्वल टुरसी। हुजूर अर्ज करेंगे अज्जिल हिसाब उम्मती, मेरी उम्मत का हिसाब जरा जल्दी जल्दी कीजिए। फयुदआ बिहिम फयुहासबून, हुजूर की उम्मत को बुलाया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। अलगर्ज ये हदीस बड़ी लंबी है, मैं चंद एक जुमले उसमें कह रहा हूँ। सारे लोग हुजूर सिफारिश करेंगे, सब लोग हुजूर के डेरे पर जाएंगे, हुजूर के आस्थाने पर जाएंगे। हुजूर क़यादत करते करते जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे। तो जन्नत के दरवाजे पर तिरमिज़ी के लफ्ज़ हैं अव्वल मन यक़रा बाबल जन्ना, सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर दस्तक मैं दूंगा। तो अंदर से फरिश्ता कहेगा मन अंता, आप कौन हैं, आप कौन हैं? ये सवाल कहाँ किया जाता है? जहाँ पहचान ना हो। मैं आप में से किसी के घर चला जाऊं, दरवाजे पर दस्तक दूं, अगर मुझे पहचानते तो कहेंगे जी आया नू, और अगर नहीं पहचानते तो कहेंगे जी आप हैं कौन, तारुफ करवाएं। तो मेरा सवाल है आपकी खिदमत में, क्या फरिश्ता हुजूर को नहीं पहचानता होगा? फरिश्ता तो फरिश्ता बनता ही जब है, जब वो मुस्तफ़ा का गुलाम होता है। फिर जन्नत, जन्नत क्या है? जन्नत नूर है, जाने वाला भी नूर है, फरिश्ता भी नूर है, तो नूर में तो पर्दा ही नहीं होता। तो फिर सवाल क्यों करेगा? वो कहेगा मन अंत, आप कौन हैं? इमाम सयूती ने, जिन्होंने 72 मरतबा 72 टाइम
हालत बेदारी में हुजूर का दीदार किया। और दुआ करें अल्लाह ताला हमें भी हुजूर का दीदार अता फरमाए। उन्होंने एक बाब बांधा है अपनी किताब में खसाइस कुबरा में, बाब हुस्न सौतिन नबी, हुजूर की आवाज़ का हुस्न। वो कहते हैं कि फरिश्ता हुजूर को पहचानता होगा, बस फरिश्ते को एक लालच है कि हुजूर ज़बान हिलाएं तो हुजूर की मीठी मीठी आवाज़ को वो सुन सके। आओ सरकार की ज़ात के साथ मोहब्बत करो। ज़िंदगी का स्टेज बड़ा मुख्तसर है। जो ज़िंदगी एंडलेस है, जिसका कोई ख़ात्मा नहीं, वो बाद की ज़िंदगी है। और बाद की ज़िंदगी में वही कामयाब होगा जिसका ताल्लुक़ दामन मुहम्मद मुस्तफ़ा से होगा। और दो काम किया करें, इस पर बात तमाम करता हूँ। एक, जब रात होती है ना, आजकल तो रेट ऑफ डेथ भी बहुत बढ़ चुका है, शरह अमवात बहुत बढ़ चुकी है। एक दुआ किया करें और हमेशा किया करें, वो बड़ा करीम है कि बारी ताला अपने हबीब का दीदार अता फरमा। एक तो ये दुआ। दूसरा, उठते बैठते चलते फिरते दुरूद सलाम पढ़ा करें। झगड़े ना किया करें। कोई दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो पढ़ने दिया करें, कोई मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ता है तो पढ़ने दिया करें। ये उम्मत के अंदर झगड़े नहीं होने चाहिए, प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। मुझे पाकिस्तान के एक अहम अदारे के लोगों ने मिलिटेंसी के हवाला से बुलाया तो मैंने कहा कि इस्लाम नॉन सेक्टेरियन सोसाइटी को डेवलप करना चाहता है। ये जो नफ़रतें हैं, इस्लाम का मिजाज ही नहीं है। इस्लाम लोगों को जोड़ना चाहता है, इस्लाम लोगों को इकट्ठा करना चाहता है। तो दो काम किया करें, पैगाम दे रहा हूँ। एक, दुआ किया करें मौला अपने हबीब का दीदार अता फरमा। और दूसरा, हुजूर पर दुरूद और सलाम की डालियाँ पेश किया करें। रब अपनी शान के मुताबिक दो ही काम करता है, अपनी शान के मुताबिक। देखिए मैंने फ़र्क रखा है, आपको कहा कि आप ये किया करें, और अल्लाह अपनी शान के मुताबिक हमारे फहम से बालातर है। एक, अल्लाह अपने हबीब का चेहरा देख रहा है। आप कहेंगे वो कैसे? कुरान कहता है, सूरह बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 144, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। और प्यारे, आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठाया जाना हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। एक, और दूसरा, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 56, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह इस वक्त भी अपने नबी पर दुरूद भेज रहा है। इस वक्त भी हम ब्रुकलेन में बैठे हैं, मैं ये तर्जमा कर रहा हूँ, युसल्लून का तर्जमा है इस वक्त भी, फेले मुजारे है, इसमें दो ज़माने पाए जाते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर। इस वक्त भी अल्लाह दुरूद भेज रहा है। दो काम किया करें। एक शेर पढ़ा था किसी ज़माना में अरबी का, हमामतुल जरा हौमतुल जुंदलिल अशजाई, रेत के टीले पर बैठे हुए कबूतर तो बोल। शायर को किसी ने कहा कबूतर बोलेगा, ऊंची जगह पर बैठा हुआ कबूतर, तुझे क्या मिलेगा? उसने कहा मुझे सुकून मिलेगा। उसने कहा वो कैसे? कहा उस ऊंची जगह के पार मेरा महबूब रहता है, कबूतर बोलेगा तो मेरा महबूब कबूतर को देखेगा, मैं महबूब को तो नहीं देख सकता, उसको तो देखूं जिसको मेरा महबूब देख रहा है। हम रब को तो नहीं देख सकते, कम अज कम उसको तो देखने की कोशिश किया करें जिसको खुद खुदा की जात देख रही है। तो हाज़रीन गिरामी, ये हुजूर की खिदमत में दुरूद और सलाम पढ़ा करें। और हशर का दिन होगा, हुजूर जब बाहर तशरीफ लाएंगे ना अपने मिज़ार से, इज़न शक्कत अनहुल अर्द खरज सबईन अल्फम मिनल मलाइकति युअक्किरूनहु, 70,000 फरिश्ते सलाम पढ़ते हुए मेरे साथ आएंगे। जन्नती दाईं तरफ होंगे, और दुआ करें अल्लाह ताला हमें भी जन्नतियों में बनाए। जन्नती दाईं तरफ होंगे, जहन्नमी बाईं तरफ होंगे। हुजूर का प्रोटोकॉल देख कर ना जन्नतियों का कुरान ने बयान किया। मैंने कोई बात अपनी तरफ से नहीं की, सब कुरान से बयान किया, हदीस से बयान किया। आप कुरान पढ़ें, सूरह वाक़िया सूरह नंबर 56 आयत नंबर 91, कुरान कहता है फसलामुल लका मिन अस्हाबिल यमीन। जन्नतियों की पहचान क्या होगी? जन्नती हुजूर को देखकर सलाम पढ़ रहे होंगे। हुजूर का शान देखकर जहन्नमियों के दिलों में भी शौक आएगा कि काश इनकी खिदमत में सलाम पढ़े। हुक्म होगा आज सिर्फ वही सलाम पढ़ेंगे जो दुनिया में मेरे महबूब मोहम्मद की खिदमत में सलाम पढ़ा करते थे। आए सरकार की ज़ात से मोहब्बत करें और फिर सरकार की सीरत को अपनाएं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किसी के साथ
तलखी से पेश नहीं आते थे, हमेशा मोहब्बत से पेश आते थे। और फिर हुजूर की सीरत शान तो आपने सुन लिया ना। सैयदा आयशा सदीक़ा, आपने कहा कार रसूलुल्लाह यजलिसु अलल अर्द, हुजूर हमेशा ज़मीन पर बैठते हैं। व यखदिम नफ्सहु, अपना हाथ खुद की अपना काम अपने हाथ से किया करते थे। और व यखसिफ नालहु, जूते खुद मरम्मत करते थे। व युखीत सौबहु, और कपड़ा फट जाता तो कपड़ा भी खुद सिलाई किया करते थे। हमारे यहाँ तो टिश्यू का पेपर लेना हो ना तो उस्ताद साहब शागिर्द को कहते हैं, पीर साहब मुरीद को कहते हैं जी टिश्यू का पेपर निकाल कर। ये उस हस्ती की बात बता रहा हूँ जिसके लिए सारी कायनात बनाई गई है कि वो कपड़े भी खुद सिलाई करते हैं, वो जूतों को भी खुद मरम्मत करते हैं। और फिर हज़रत खतीजा का एक जुमला है, आपने जब वही उतरी ना, है तो 5 जुमले लेकिन एक जुमला कहता हूँ। आपने कहा या रसूलल्लाह, आपको अल्लाह ताला ने इतना पसंद किया, तुकरीउद्दैफ, आप हमेशा मेहमान की इज़्ज़त करते हैं, मेहमान से प्यार से पेश आते हैं। आपने भी, मेरा ये गालिबन यहाँ आखिरी खिताब है, मुझे बड़ी इज़्ज़त और पज़ीराई बख्शी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हुजूर के मकाम की समझ अता फरमाए। आपके चेहरों की चमक बता रही है कि मैं लंबी गुफ्तगू भी करूं तो आप सुनेंगे, लेकिन चूँकि मैंने किसी और मकाम पर भी जाना है और लंगर भी आ चुका है, मैं बरादर मोहतरम कबीर साहब और इनके बड़े भाई शबीर साहब और फिर ज़मीर साहब और फिर अशफाक साहब हैं और दीगर लोग जितने काफ़ी सारे अहबाब हैं, इन सब का और आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खालिद अंसारी साहब अगर कहीं मौजूद हैं, बड़ी खूबसूरत तिलावत की है, बड़ा मज़ा आया, सच्ची बात है। यानी एक दिल के अंदर एक कैफियत पैदा हुई। और इस हाल के बानी मबानी खालिद खान साहब, अल्लाह ताला सबको इज़्ज़ व शान अता फरमाए। इकबाल ने कहा था, लोह बित्तू कलम बित्तू तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब, तेरी नगाहे नाज से दोनों मराद पागे, अकल गयाबो जुस्तजू इश्क हुजूरो इस्तिराब, और शौक तेरा न हो अगर मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। और एक हिंदू शायर ने कहा था कि वो कहता है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जो अज़मत है, आपकी जो रहमत है, आपका जो करम है, वो हर एक तरफ बिखरा हुआ है। मैं गुम्बदे खिजरा की तरफ देख रहा हूँ, कौसर मेरे नज़दीक ये मेराज नज़र है। आओ अपने घरों के अंदर एक दीनी माहौल पैदा करो, बच्चों को इल्म से आरास्ता करो और दिलों के अंदर हुजूर की मोहब्बत का नूर लाओ। अगर कोई बंदा वालिद का चेहरा देखता है, वालदा का चेहरा देखता है, अपनी शरीका हयात से अच्छे अखलाक से पेश आता है, अपने बच्चों के साथ बैठकर हुजूर का जिक्र करता है, ये सारी चीज़ें मिलाद की हैं। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी दीन इस्लाम की समझ अता फरमाए। उमम, एक हिंदू शायर कहता है, प्रोफेसर गोपीनाथ, शफ़ी उमम रहमतल लिल आलमी है, तेरी ज़ात वाला नमुव्वा फरी है। ये लड़ते कबाइल को किसने बताया, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं है। और मदीने से नूर फैला जहां में, मेरे एशियाए कूचक की अजब सरजमी है। वमा अलैया इल्लल बलाग।